الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلند الصلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حراران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لے۔ اللہ محروم الملت جناب بابا سید نزاکت شہری کی صفحہ عزا بچھائی، رسول کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ اور اکلوتی بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس ذکر کا صدقہ مخدوم صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رکھے، جتنے بھی بیمار ہیں میرا مالک ان تمام کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بالخصوص سید آبے کے کفیل شاہ صاحب توفیل شاہ صاحب کے میرا مالک درجات میں بلندی ہو والدین کے، اور جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے میرا مالک تمام کی مغفرت فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اس سے دیدار کربلا نصیب نہ ہو سکے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند کریں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آپ سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے دور میں اس افراتفری کے عالم میں سسکتی بلکتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس کے گھر آ کے پرسکون ہو جاتی ہے اس گھر کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تھکا ہوا جاگتا ہوا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین یہ کریم کا دربار ہے، کریم کے نام پہ سجدہ ہے اور کریم کو تشریف لے آئے۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے، دیواریں نہیں، ہزارے معصومین ہیں، سر پہ چھل نہیں، عباس کے کرم کا سایہ۔ 1400 سال ہو گئے میری قوم ذکر حسین ابن علی عبادت سمجھ کے عقیدت سمجھ کے کرتی ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں وقت اور پیسہ اس چیز پہ لگایا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ یہ قوم صدیوں سے ذکر حسین پہ پیسہ بھی دے رہی ہے، وقت بھی دے رہی ہے، سوائے نعرے لگانے کے یا رونے کی حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو ٹھیک کریں۔ ذکر حسین سے انہیں ملتا کیا ہے؟ مجلس حسین پہ خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں آج تک مقصد مجلس حسین سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ قوم کریا کریا نگر نگر گلی گلی چوراہے چوراہے پابندیوں کے باوجود، جنازے اٹھانے کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، دھماکوں کے باوجود، افراتفری کے باوجود انہوں نے ذکر حسین نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جنازے اٹھا لیے، حسین نہیں چھوڑا۔ انہوں نے گھر جلا لیے، حسین نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پابندیاں برداشت کر لی، حسین نہیں چھوڑا۔ آخر یہ مجلس حسین سے چاہتے کیا ہے؟ جس بانی نے مجلس کروانی ہوتی ہے وہ 6 مہینے پہلے درخواست دے کے مختلف دفتروں کے چکر لگاتا ہے۔ آخر یہ مجلس حسین سے چاہتے کیا ہے؟ مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ پورے ملک کا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے، جہاں تک دنیا میں یہ آواز سنی جا رہی ہے آؤ تمہیں مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ سناؤ۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں۔ جو بول سکتا ہے وہ نبول بتائی، ابلیس نماز میں آ سکتا، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ تو نماز میں مطمئن نہیں ہوتا کہ تیرے تصورات کو شیطان چوری نہ کرے۔ پڑھی اللہ کی قربت کی نیت سے سی مصلی پہ آیا، سوچوں نے گھیر لیا، تصورات نے گھیر لیا، پریشانی اور خطروں میں آ گیا۔ زبان ذکر کری رہی، ذہن معاش کی فکر میں رہا۔
खौफ, खतरा, परेशानियां। मजलिस हुसैन में बैठ के मुझे कोई बंदा दुनिया की परेशानी में परेशान होके दिखाए। मजलिस हुसैन में कोई परेशानी नहीं, परेशान थे जब तक इस दरवाजे से बाहर। और फिर ये मजलिस हुसैन में इमाम बारगाह के गेट के दरवाजे नहीं खुले होते, हुसैन बाजू फैला के खड़े होते। हुसैन आज भी ऐलान करता है कोई हुर बनना चाहे तो मैं बनाने के लिए तैयार हूं। ये हुसैन इब्न अली का दरबार है, हुसैन के नाम पे सजाया जाता है। मजलिस हुसैन का पोस्टर मजलिस हुसैन से 6 महीने पहले छप जाता है, कहीं नहीं लिखा होता कि सिर्फ शिया हजरात आ सकते। मजलिस हुसैन सबके लिए दरवाजे पे खड़े हुए हमारे नौजवान जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। अकीदा कोई भी है, सोच कोई भी है, फिक्र कोई भी है, तो हुसैन की सब में आ जा, हुसैन की मजलिस में बैठ जाओ। हुसैन इब्न अली जब दरबार सजाते तो हुसैन बगैर किसी फर्क के सजाते। यहां कोई शर्त नहीं है कि जो अमीर है वो आगे बैठेगा, जो गरीब है वो पीछे बैठेगा, जो पढ़ा लिखा है उसे अमीर सबों में जगह दो, जो अनपढ़ है उसे पिछली सबों में जगह दो। हुसैन के दरबार में यह तरीका है ही नहीं। हुसैन सबको इकट्ठा करके बिठा देता है। यहाँ अमीर के पहलू में आकर गरीब बैठ जाता है, पढ़े लिखे के साथ जुड़ कर बैठ जाता है। अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत में शर्मिंदगी कोई नहीं होती, पढ़े लिखे को इल्म में तकब्बुर कोई नहीं होता, अनपढ़ को अपनी जहालत में शबानी कोई नहीं होती। तुम जगीरदार थे, तुम जज थे, तुम प्रोफेसर थे, तुम डॉक्टर थे, तुम जमाने में कोई ओहदा मनसब रखते थे, इस दरवाजे के बाहर थे। जब हुसैन के घर आ गए अब कोई मनसब नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई रुतबा नहीं। तुम्हारी जगीरें तुम्हें मुबारक, तुम्हारी जायदादें तुम्हें मुबारक, तुम जितने मर्जी आलम थे। लेकिन जब हुसैन के सब में आ गए, हुसैन इस जमाने में सबके सामने सबको जमीन में बिठा दिया। हुसैन तुम्हें जमीन में बिठा के कायनात की निगाहों में निगाहें डाल के बताता है ये जमीन पे बैठी हुई कौम हमेशा सबसे ऊंची रहती है, ये जमीन पे बैठे हुए लोग हमेशा सबसे ऊंचे रहते हैं। हुसैन के दरबार पे आके अपना मनसब बताना इस दरवाजे पे कुफ्र समझा जाता है, क्योंकि इस दरवाजे पे आया था, उसके पास ओहदा अफजल मलाइका था, उसके पास रुतबा सैयदुल मलाइका था। लेकिन जब दरवाजे में दस्तक दे के उसने अपना तारुफ करवाया था, उसने कहा अना हयातुल हसनैन, मैं हसनैन का तरसी हूं। पर्दे के अंदर खड़ी सैयदों की कमीज से कहा था जबरील में तेरे लहजे से वाकिफ हूं, मुझे खबर है तू जबरील है, जबरील बन के तारुफ क्यों नहीं करवाता? उसने कहा फिजा तुझे नहीं पता, इस दरवाजे पे आके अपने ओहदे नहीं बताए जाते, जो ये अदा करे वो बताया। हुसैन इब्न अली, ये मजलिस हुसैन की जीत का ऐलान, ये मजलिस हुसैन की फतह का ऐलान। हुसैन जीत चुके, यजीद हार चुके। और ये हुसैन की जीत थी कि हुसैन के दुश्मन ने भी जब करबला को लिखा तो उसने करबला को वाकया करबला लिखा, जंगे करबला क्यों ने लिखा? सफीन को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, मेहरबान को जंग लिखा। जुर्रत कर लिख करबला में जंग हुई, हुज्जत वहां भी थी, हुज्जत यहां भी है, तलवार वहां भी थी, तलवार यहां भी है, लश्कर वहां भी था, लश्कर यहां भी। वो जंगे हैं, ये वाकया क्यों? क्योंकि हुसैन ने करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी में जंग के असूल को तोड़ दिया। हुसैन ने बताया कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले असूल और 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद असूल और हो गया। हुसैन का 10 मुहर्रम से पहले असूल ये होता था, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें बल्ला हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े कट जाते थे, सीने छल्ली हो जाते थे। हुसैन ने कहा मैंने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की गर्मरेत में असूल को बदल दिया। हुसैन ने कहा 10 मुहर्रम के बाद असूल ये होगा थोड़े जीतेंगे ज्यादा हारेंगे, प्यास जीतेगी दरिया हारेगा, तलवारें टूटेगी और सर मेसों पे बोलेंगे, नेज़े टूट जाएंगे और सीने बुलंद हो जाएंगे। हुसैन का तरीका मुअर्रख ये लिखने में मजबूर हो गया, वहां लाखों थे यहाँ 72 थे, वहां लाखों थे यहाँ 72 थे। वो किराए के कातिल थे, उन्हें जगीरों के लालच थे, उन्हें दिरहमों के नार का लालच था, खजानों के मुंह खोले हुए थे। लेकिन जिनको खजानों के मुंह देकर बुलाया गया था उन्हें मिन्नतें करके बिठाया जा रहा था।
انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، وہاں آتا کوئی نہیں تھا، یہاں سے جاتا کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاکھوں میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں بچ جاؤں گا، کیا میں زندہ واپس چلا جاؤں گا، کیا کل میں قتل تو نہیں ہو جاؤں گا۔ یہاں 72 میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا سب سے پہلے میں مر جاؤں گا، کیا حسین مجھے بھیج دے گا، کیا میرا خون پیر کے کام آ جائے گا۔ حسین کا تاریخ لکھنے میں مجبور ہو گئی کہ وہاں لاکھوں میں یہاں 72 تھے۔ اس نے اس لیے میری جان کو جل نہ لکھا کیونکہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ جب وہ لاکھ 72 کے مقابلے بھی آئے تھے، ادھر سے میرا اکبر آیا، ادھر سے 5000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا قاسم آیا، ادھر سے 8000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا۔ حسین کا تاریخ لکھ گئی، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں درود سارے ہزار مل کے وہاں دراز وہاں لاکھوں میں ہزاروں بس دو یقین یہاں 72 میں ایک بھی، کیونکہ یہ 72 عشق حسین میں آئے۔ محبت اور ہے، عشق اور۔ محبت اور عشق کا صرف ایک ہی فرق بتا دیتا ہوں۔ جنہوں نے احد کے میدان میں نبی کا دان زخمی دیکھا انہیں محبت تھی، جس نے سنا چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ میں تشریف لے آئے بابا ذریعہ شاہ جی بیٹھے دعا دینے کے لیے۔ جو نبی کے ساتھ جنگوں میں جاتے رہے انہیں محبت تھی، جو نبی کے جنازے پہ تھے یہ جتنے آئے ہیں یہ عشق حسین میں آئے ہیں، کیونکہ حسین کربلا میں 72 جسم نہیں لائے تھے، حسین کربلا میں 72 سانچے لائے تھے۔ حسین نے 72 سانچے کربلا میں رکھ دی اور حسین نے کہا اب جو جس سانچے میں ڈھلنا چاہتا وہ ڈھل جائے۔ یہ کربلا کی واحد جنگ ہے جو بجھے چراغ پہ ہوئی ہے۔ حسین نے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ فلسفہ 10 محرم سے پہلے تھا کہ پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، حسین نے یہ فلسفہ بدل دیا۔ حسین نے کہا پروانے کو شمع سے محبت نہیں، شمع کی لو سے محبت۔ اگلا جملہ اسلام آباد میں ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا۔ حسین نے کہا اگر پروانے کو شمع سے محبت ہوتی تو شمع کے بجھنے کے بعد پروانے میت چھوڑ کے بھاگ نہ جاتے۔ حسین نے چراغ بجھایا، لیکن چراغ جب دوبارہ جلا، دوسری دفعہ چراغ شرمندگی سے بجھ گیا، کیونکہ جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو سامنے 72 سورج طلوع ہو گئے۔ عشق حسین کا چمکتا ہوا سورج ہے۔ بسم اللہ۔ حسین کربلا میں جو 72 لے کے آئے تھے وہ عشق حسین میں۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا تم حسین کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں حسین سے عشق، ہمارا ماتم عشق ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو قرآن سے ثابت کریں، زمانہ سوال بدلے ہم پھر جواب دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی قرآن سے ثابت کرو، تم سوال بدلو ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو حضرت علی سے ثابت کرتے ہیں۔ میں لفظ کا آپ خاموش ہوئے، دعویٰ میں نے کیا، دلیل میں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کو قرآن سے ثابت کریں، ہم قرآن ماتم سے ثابت کریں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال جو ہے آپ کے چہروں پہ نمایاں ہے کہ سوال یہ ہوگا کہ قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کوئی غیر مسلم، آج کوئی عیسائی کسی مفتی کے دروازے پہ جاتے ہیں، وہ جا کے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، ہاتھوں میں کھلا قرآن ہے، جو قرآن میں لکھا وہ کر کے دکھا یا ہوتا ہوا دکھا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نہیں مانتا یہ اللہ کی بھیجی کتاب ہے، میں نہیں مانتا یہ وحی سے اتری ہے، میں نہیں مانتا یہ نبی کے سینے پہ اتری، جو اس میں لکھا ہے وہ کر، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یا ہوتا ہوا دکھا۔ جوان میرے ساتھ مناد میں ہونے کے لیے تیار۔ وہ کہے گا کیا لکھا؟ وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے، چل اتنا بتا دو تمہارے قرآن میں لکھا۔ تمہارے ایک نبی کا نام جس کا یوسف تھا، وہ مصر کے کمرے میں آیا تھا، سامنے چند عورتیں بیٹھی تو ان کے ہاتھوں میں پھل تھے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھی۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا، انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی۔ اس نے کہا عقل مان تھی کہ مولوی ذہن تسلیم کرتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، خون نکل آئے اور تکلیف بھی نہ ہو، جسم بھی کرتا رہا اور پتہ بھی نہ چلو۔ ایسا یا تو کر کے دکھا، میں قرآن کو مان لیتا ہوں، یا مجھے ہوتا ہوا دکھا، میں اسلام کو مان لیتا ہوں۔ مفتی دروازہ بند کر دیتا ہے، میری قوم کا ناک بھی دروازہ نہیں بند کرے گا۔ ہم اس کا ہاتھ پکڑوں سے ہلکا ماتم میں لے کے آئیں
विलायत अली पे समझौता नहीं, मातम हुसैन पे समझौता। मातम हुसैन नकल फतवे का मोहताज था। आज अली उल वली नवाजब और जब मुस्तहाब इस बहस से निकल के थोड़ा और आगे चलते अली उल वलीउल्लाह अजर रिसालत, अदायगी अजर रिसालत। इस घर को आग लग गई घर के दराज से। अली उल वलीउल्लाह की वकालत वो करते हैं जिन्होंने चंद दिन पहले कलमा पढ़ा। अगर अली उल वलीउल्लाह की बहस करनी है तो मिंबर हुसैन से विलायत अली का हकीकी चेहरा दिखा। पहले जमाने को बताओ कि इख्तियार हुज्जत क्या है। हुज्जत का इख्तियार किसा? आपने हजारों दफा बात का सुना, एक शख्स नमाज पढ़ा, रसूल ने उसे हाथ नमाज में बुलाया, उसने नमाज तेज की, रसूल ने फिर बुलाया, उसे और तेज की, तीसरी बात में नमाज खत्म करके नबी के पास आया। नबी गया रसूल, फरमाया पहली आवाज पे क्यों नहीं आया सरकार ने नमाज पढ़ा? फरमाया शर्म नहीं है तुझे वजूद नमाज बुला रहा, तुझे असर नमाज। ये वाक्य आपने सुना है, ये वाक्य मुझे दोहराना नहीं, इस वाक्य को दोहरा के कौम का वक्त जाया नहीं करना, इससे अगला रुख दिखाओ। उसे कहा या रसूलल्लाह फिर क्या करना चाहिए? तो फरमाया जब भी तुम्हें हुज्जत बुलाए, जिस भी हालत में उस हालत से निकलो, हुज्जत के पास आ जाओ, इसे दीन कहते हैं। उसे कहा या रसूलल्लाह मैं नमाज की हालत में था। फरमाया बेशक नमाज की हालत में तू क्यों नहीं आया? उसने जो दलील दी उसकी मार्फत के मुताबिक दलील बड़ी अच्छी उसकी मार्फत के मुताबिक। उसे कहा या रसूलल्लाह नमाज है अल्लाह की, आप हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह होता है बड़ा, रसूल होता है छोटा। मैं था बड़े के पास खड़ा, बड़े की अदालत में खड़ा था, छोटा मुझे आवाज दे रहा था। अकल ये कहती है, अकल ये कहता है कि जब तुम बड़े की अदालत में खड़े हो तो बड़े की अदालत छोड़ के छोटे की अदालत में तो नहीं आया जाता। या फिर आप ये कहिए कि आप अल्लाह से बड़े। लेकिन नबी ने जवाब ऐसा दिया कि उस अकीदे को मौत दे दी। नबी ने कहा दे जाइए, ये जवाब बिल्कुल ठीक है, तू ही था अल्लाह की बारगाह, बेशक वो बड़ा है, अल्लाह बड़ा, उससे बड़ा कोई भी नहीं। लेकिन तू मुझे ये बता सकता है कि तूने अल्लाह देखा है? अब जो बोल सकते वो बंदा बोलेगा नहीं, उस अल्लाह से कभी मिला हो नहीं, वो कभी मिलने आया, उसने कहा सरकार ऐसा हो नहीं सकता। फरमाया अल्लाह को देखा तूने नहीं, मिला तू नहीं, तुझसे मिलने वो आया नहीं, मांग क्यों है? सरकार आपने कहा वो है, फरमाया बुला भी मैं रहा था, मेरे कहने पे तूने ना देखा अल्लाह मान लिया, तो बुला भी तुम्हें रहा था। उसे कहा यार सुना फिर क्या करना चाहिए? तो फरमाया बस शरीयत का हुक्म दे, जब हुज्जत बुला जिस भी हालत में हो उस हालत से निकलो और हुज्जत के पास। उसने उसी रात सहाबा की महफिल में बैठे कहा, उसे कहा मुझे आज शरीयत के एक नए मसले का पता चला, मुझे आज पता चला कि नबी जब बुलाए तो जिस भी हालत में हो, चाहे नमाज की हालत में, अल्लाह की नमाज नबी के लिए तोड़ी जाए। इसने सहाबा की महफिल में बैठ के ये जुमला कह के बताया कि ये मुझे पता चला है, शायद तुम्हें नहीं पता। करीब बैठा था एक बूढ़ा जवान, तकाज़ा हयात ने बुढ़ापा दिया हुआ था, मोहब्बत अली ने शबाब दिया हुआ। नाम था सलमान, सीने पर तमगा इमाम। मगर अब उसने झुकी हुई कमर को सीधा सीधा करके क्या कहा तूने कि तुझे आज पता चला कि नबी बुलाए तो अल्लाह की नमाज तोड़ी जाती है? कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा हकीक पे नमाज कैसे करते। बाबा जी दुआ लेने के लिए अगले दिन सलमान के पहलू में खड़ा हुआ, जब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का तकबीरतुल इहराम के बाद सलमान ने नमाज को शुरू किया। सलमान का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। इस जुमले में सलमान आए थे नबी की आवाज में सलमान ने वही से मुसल्ला छोड़ा, नबी कदमों में जाकर लब्बैक या रसूलल्लाह। सलमान प्यास लगी है, पानी पिला। सलमान ने मशकील से पानी का प्याला भरा, नबी कदमों में जाकर नबी को पानी का प्याला पेश किया। नबी ने पानी का प्याला पीने के बाद सलमान को पानी का प्याला वापस किया। सलमान ने हाथ जोड़कर मौला को यौम कर, फरमाया सलमान वापस आया। सलमान मुसल्ले पे सलमान ने खड़े होकर इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया, भाई ये चलती चलती नमाज खत्म की। नबी के कदमों में जाकर बुढ़ा हो गया, बतूर की तारीफ में सजदे करते हैं। नमाज के तरीके का पता, न शरीयत के असूल का पता। ये नमाज की किरात ऊंची आवाज में कर रहा था, वो सुन रहा था। ये इय्याका नस्तईन से नमाज को तोड़ के चला गया था। जब वापस आया इसने नमाज को सिरे से नहीं पढ़ा, इसने वहीं से नमाज को शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह सलमान को बुला के कहे अपनी नमाज को दोबारा अदा करे। नबी ने कहा सलमान जब तू नमाज को तोड़ के गया था तूने सिरे से क्यों नहीं पढ़ी? हाथ जोड़कर मैंने तोड़ी कब थी?
विलायत अली हुर्मत सलाह मातम शबीर कोई समझौता। अगर कोई ज़ाकिर हुसैन जिक्र हुसैन पे इस्लाम का कोई पहलू बयान करे तो बजाय एतराज करने के, तनकीद करने के, तायीद की है। बाकी वजह ठीक है, अगर मिंबर से हक बयान किया जाए तो उस हक को हक से मिंबर इंतशार के लिए नहीं, मिंबर इत्तेहाद के लिए। अगर खुद अपने किरदार को बेहतर नहीं कर सकते तो किसी के बेहतर हुए किरदार पे तनकीद में नहीं कर सकते। हुसैन का दरवाजा सबके लिए खुला है। हुसैन कब किसको किस रंग में बुलाएंगे हुसैन कहते हैं। दुनिया मान जाती अली की बेटी शाम के बाद में। सैयद आदम पूरे मुल्क के नुमाइंदा चेहरे मेरे सामने सारे दुआ करने के लिए अल्लाह मखदूम का साया हमारी कौम के सामने अल्लाह ने मुकम्मल से अल्लाह साहब तशरीफ फरमाए, बाबा ज़ुरिया तशरीफ फरमाए। मैं सबसे इमाम हुसैन का छोटा जाकर हाजिर मेरी हो गई। दिन आ रहे हैं रसूल की बेटी के, शहादत नहीं पढ़नी, मुसीबत भी नहीं पढ़नी, न शहादत किसी ने आज पढ़ी न कोई पढ़ेगा। ये जो पर्दे में खून हो रहा है उसे पता है कि वो तस्बीह दाएं हाथ से क्यों नहीं करती। छुप गया रवायात में कत्ल ज़हरा, छुप गया, नहीं बयान हो सकता किसी ने। मैं पिछले साल याम फातिमिया में कुम आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कुम बीबी के सही में मजलिस पढ़ रहे। शहादत मेरे रसूलों ने पढ़नी थी। मैंने कहा आरफ मुश्किल, मैं मजलिस में बैठ गया। शहादत की कोई तफसील नहीं पड़ी, एक जुमला पढ़ा है उस आलम दीन ने। बीबी के हरम में कोहराम हवा हो गया। उन्होंने शहादत पढ़ने से पहले सर से इमामा उतार के मिंबर पे रख के उसने कहा मुझे लोग कहते हैं कि ज़हरा की मज़लूमियत बयान करो, मैं उस ज़हरा की शहादत पढ़ूं जिसकी शहादत की खबर जब अली के कानों में पड़ी है, अली के सफ़ाफ़े मुंह के बल जमीन पे गिर गया, अली का माथा जमीन पे आ गया। अली ने रो के फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी विलायत की मुहावजा चली गई। जो गली गली जाके मेरी विलायत पहुंचाती थी वह मोहसनाए विलायत चली गई। 3 दर्द मैं पढ़ने लगा हूं रसूल की बेटी के, शहादत नहीं, हौसल नहीं, कफन नहीं। 3 दर्द, 2 दर्द पढ़ूंगा वजाहत करूंगा, तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, गैर सैयद हूं वजाहत नहीं करूंगा, 2 दर्दों की वजाहत करूंगा, तीसरे की वजाहत नहीं करूंगा। रसूल की बेटी की मजलूमियत का पहला दर्द यह है कि अली ने मोहम्मद की बेटी को 7 चादरों का कफन दिया। जिसने हाय गई इस वक्त में ज़हरा तेरा हाय कहना कबूल करे, जो रोया है मोहम्मद की बेटी के हक पे आज के इस दौर में जिसने ज़हरा की मजलूमियत में आंसू बहाए, मौला तेरे आंसू हक के ज़हरा पे मुकदमे में गवाह के तौर पे शुमार करे। रसूल की बेटी का मखलूक बाबा नज़ाकत शरीफ पहला दर्द ये है अली ने 7 चादरों का कफन दिया। जिसने नहीं हाय कहा उसने यह समझा कि शायद अमीरी की वजह से दिया। अली ने पहली चादर दी, फिजा के हाथ कांप गए, आवाज या अली चादर दूसरी मिल सकती है, चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा रो के कहती या अली ज़हरा का खून नहीं रुक रहा। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की तरफ के आवाज या अली ज़हरा का पहलू बड़ा जख्मी है। अली ने चौथी चादर दी, फिजा चीखती ही पर्दे से बाहर आ गई, रोगी मेरी अली मेरी मजबूरी है, ज़हरा की पसलियां टूटी हुई है। अली ने 5वीं चादर दी, फिजा कदमों पे गिर गई, रोगी मेरी अली जख्म गहरा है। 7वीं चादर फिजा के हाथ में आई थी, यह ज़हरा की मैयत काट गई। आवाज हुसैन बाबे से कहे चादर ना बदल, मैंने बाप को जख्म दिखा, मेरा खून कफन में बंद नहीं होना। पहला दर्द 7 चादरों का कफन, दूसरा दर्द सदा से माफी मांग के। कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है हुसैन की मां, जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई। उलमा ने लिखा है 40 कब्रें बनाई हैं अली ने। क्या खौफ था अली को, किसी को आज भी नहीं पता मोहम्मद की बेटी कहां सो रही है।
उलमा कहते हैं रोज़ा रसूल में भी ज़ियारत पढ़ो, रियाजुल जन्ना में भी पढ़ो, जन्नतुल बकी में भी पढ़ो। ये पर्दे वाले को पता है कि हकीकी कब्र कहाँ है। हुसैन की माँ की आधी रात को दफनाने के लिए गया था हुसैन का बाबा। हर रात ज़हरा को दफनाने के बाद अली आधी रात को घर से कुरान उठाते, तलवार उठा के चले जाते। एक दिन ज़ैनब ने आके बाबे की अदा पकड़ी, वो कहती क्यों कुरान लेके मेरी माँ की कब्र पे जाते हैं, मेरी माँ कोई तलावतों की मोहताज है। पर मैं तेरी माँ को तलावत की जरूरत नहीं, मैं ऊंची आवाज में कुरान इसलिए पढ़ता हूँ, इन बेगैरतों को पता चलता है कि अली कब्र पे पहरे दे रहा है। जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेंचे लेके ज़हरा की कब्र पे ना। मैं ऊंची आवाज में कुरान इसलिए पढ़ता हूँ, इन कमीनों को पता चल जाए अली पहरे दे रहे। पहला दर्द 7 चादरों का कपड़ा, दूसरा दर्द 40 कपड़े। दर्द पढ़ा, चादरें पड़ी, मजबूरी बताई, कब्रें पड़ी, मजबूरी बताई। गैर सैयद हूं, ये हाथ जोड़ के करो। तीसरा दर्द पढ़ूंगा, मजबूरी नहीं बताऊंगा, दर्द पढ़ूंगा और मिंबर छोड़ दूंगा। बाबा नज़ाकत शाह से लेके आखिरी सैयदादे तक मुझे जुमला माफ कर देना। तीसरा दर्द कायनात की इस मजलूमा का ये है, दरबार से लेके शहादत तक, जब दरबार से वापस आई तब से लेके पीर जमाती उसानी तक ज़हरा अपने बेटों से अपना चेहरा छुपाती रही है। ज़हरा ने बेटों से पर्दा किया है। एक दिन हसन ने आके कहा माँ शरीयत में बेटों के साथ पर्दा नहीं होता, तो मैं मेरी मजबूरी मेरी जिंदगी मेरा पूछ